Hey guys, welcome back to the channel and you're watching the biggest match कह रहा हूँ सॉरी। आज आप लोग पढ़ने जा रहे हैं द गोल्स, ये ख़त्म होने वाली है। ओ राहुल सो गया, बोलो आपको आपसे पर्सनली बात करनी है फिर। ओके श्योर श्योर श्योर, पर्सनली मतलब इंस्टाग्राम पे तो ठीक है, नो इशू। वेट अ सेकेंड। लेट्स स्टार्ट। मैंने कर दिया है वीनस पाइप में अप्लाई 2 अकाउंट से। गुड 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 गुड। अभी तो मत ही बोलो यार, मतलब मूड ही ख़राब हो रहा है। अभी थोड़ा दूर रहूँगा मैं ट्रेडिंग और रीडिंग से। अभी नहीं, अभी ऑलरेडी सारा पैसा इन्वेस्टेड है। पैसे अभी है नहीं, अभी जैसे ही आएंगे तब सोचूंगा, तब 10,000 लगाऊंगा। टाइम मैनेजमेंट मीन्स, अरे मॉनल जब वो लॉस में जाएंगे ना तब खरीदूंगा मैं। वीनस पाइप आते ही लॉस में जाएगा तब खरीदूंगा। टाइम मैनेजमेंट रिक्वायर्स दैट यू मेक द बेस्ट चॉइसेस एंड डिसीजन नेसेसरी टू एनहांस द क्वालिटी ऑफ योर लाइफ एंड वर्क, देन you follow through on your decisions. You should plan your life with list of long terms, medium term and short term goals and projects. You should plan every month in advance with a list of things you want to accomplish during that month. You should make a list of every step in each multitask job that you want to complete and then organize that list by priority and sequence. Use advanced planning. Begin today to plan every week in advance, preferably the Sunday before the work week begins. Plan every day in advance, preferably the night before. वो क्या कह रहा है? Begin today to plan every week in advance, preferably the Sunday before the work begins. Plan every day in advance, preferably at the night before. अब देखो क्या करना है, आज आप कल क्या करने वाले हो वो आज आपको देखना है। अमन जी नींद में हो या मूड ऑफ है, दोनों ही मान कर चलो। आज छोटू ने मौज कर दी। हाँ बहुत ही अच्छा छोटू है आपका, बहुत ही क्यूट। अभी रहेगा 1-2 दिन मूड। चार गिलहरी पटा के आया, अब सब उसके पीछे भाग रही थी, वो बेचारा खुद दूर भाग रहा था। ज़्यादा गर्लफ्रेंड बना ली उसने। हेलो मयंक राजपूत, कैसे हो? वेलकम बैक टू द चैनल, स्टे ट्यून। आप बात करें यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि हमें एक रात पहले ही ना सारी वो कर लेनी चाहिए प्लानिंग कि कल क्या करना है। व्हेन यू मेक अ लिस्ट ऑफ एवरीथिंग यू हैव टू डू टू फॉलोइंग डे, योर सबकॉन्शियस माइंड वर्क्स ऑन दैट लिस्ट ऑल नाइट लॉन्ग। अब आज आपने जो लिस्ट बना ली है वो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है उस पर पूरी रात काम करता रहेगा, सोते वक्त भी काम करता रहेगा कि मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है। और जब सुबह उठोगे तो आप वो करने के लिए सक्षम होंगे। When you wake up in the morning, you will often have ideas and insight to help you accomplish the items of your list. By writing out your plans, you will activate the law of attraction. You will begin attracting into your life the people, opportunities, and resources that you need to achieve your goals and complete your task the very best way possible. Separate the urgent and important. In the process of managing your time, you must separate the urgent tasks from the important ones. Urgent tasks are determined by external pressures and requirement. You must do them immediately. Most people spend most of their days responding and reacting to urgent tasks in the form of telephones calls, interruptions, emergencies, and demands of their boss and their customers. Important tasks, on the other hand, are those that can contribute the very most to your long term future. अब क्या कह रहे हैं? इंपॉर्टेंट टास्क जो होता है, ऑन द अदर हैंड दोज दैट कैन contribute the very most of your long term future. Some of these tasks may be planning, organizing, studying, researching customers, and setting priorities before you begin. Then there are tasks that are urgent but not important, such as answering a ringing phone or dealing with a coworker who wants to chat. Because these activities take place during the workday,
It is easy to confuse them with the real work. The difference, however, is that they produce no results. No matter how many urgent but unimportant activities you engage in, you contribute nothing to your work or your company. The fourth category of the task includes these that are neither urgent nor important, like reading the paper at work or going for a long lunch. These activities are positively harmful to your career because they consume time that you could be using to get results for which you are paid and upon which your future depends. तो उस चीज़ को टाइम दो. अनीता जी सोई नहीं क्या? सो गई है, मतलब कर रही है मॉम, वीडियोस अपलोड कर रही है. अरे मेरे डोले शोले में कुछ डिफरेंस नोटिस किया क्या? थोड़ा सा लाइनिंग दिखी. हाँ हाँ हाँ, कैसे किए सब? अमन जी एक बात बोलूँ, बताओ मेरे डोले शोले में कुछ डिफरेंस दिखा क्या? आज एक्सरसाइज की थी क्या? आज बताओ बताओ, एक्सरसाइज की थी क्या? अब बात करें कंसीडर द कॉन्सिक्वेंसेज. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड इन द डिटरमाइनिंग द वैल्यू ऑफ पर्टिकुलर टास्क और एक्टिविटीज कॉन्सिक्वेंसेज. आज 30 मिनट्स ही करेंगे यार. आज 30 मिनट्स करेंगे, ठीक है? आज वो दिन है जिस दिन हम 30 मिनट्स करेंगे. पहले भी एक दो बार कर चुके हैं एक्चुअली. थोड़ा और इम्पोर्टेंट काम भी है तो आज फास्ट पढ़ूँगा. टारगेट 214 पे है ना, 224 का टारगेट है. ओके 224. रिव्यू योर गोल्स डेली, ठीक है? अरे विशाल जी ने बोला था उनके साथ फीमेल के नाम पे एक छिपकली साथ है, बोला है आपसे मिलवाएंगे. ये बोला उनके साथ फीमेल के नाम पे एक छिपकली साथी है. बाइसेस वाले किए थे. क्या बात है, गुड गुड गुड. अभी तो मेरी तो एक्सरसाइज ज़ीरो हो रही है, मैं भी जाऊँगा यार एक्सरसाइज करने. रियल वर्क द डिफरेंस हाउएवर इज दैट दे प्रोड्यूस नो रिजल्ट्स. नो मैटर हाउ मेनी अर्जेंट बट इम्पॉर्टेंट अनइम्पॉर्टेंट एक्टिविटी यू एंगेज इन, you contribute nothing to your work or company. The fourth category of the task includes those that are neither urgent nor important, like reading the paper at work or going for lunch. These activities are positively harmful to the career because they consume time that you could be using to get the results for which you are paid and upon which your future depends. Consider the consequences. अब क्या है, consequences को आपको झेलना ही होगा. The most important word is determining the value of a particular task or activity is consequences. A task that is valuable and important is a task that has serious consequences for completion and non-completion. The greater the possible consequences of a task or activity, the more important it is. A task for which there are few is, if any consequences is definition not particularly important. Your aim is personal management. आपका एम जो होना चाहिए वो पर्सनल मैनेजमेंट होना चाहिए. कल मेरा 12th बोर्ड का एग्ज़ाम है और मैं 4 घंटे थॉमस कप देखने में लगा दिए. कोई बात नहीं, आज मतलब वर्दी रहा होगा. थॉमस कप देखना वर्दी रहा है भाई. 25 साल बाद हमारा मेडल कंफर्म हो गया. इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि आपके 4 घंटे यूटिलाइज हुए हैं. आपने हिस्ट्री बनते हुए देख ली. पढ़ाई तो हो ही जाएगी, करी तो होगी. इतनी रात रात को पढ़ते हो तो पढ़ाई तो हो ही चुकी होगी. मैं तुम जानता हूँ मेरा मोनल भाई बहुत होशियार है. The greater the possible consequences of a task or activity, the more important it is. A task for which there are few, if any, consequences is by definition not particularly important. Your aim is personal management. आपका जो aim होना चाहिए वो personal management होना चाहिए. Therefore is to spend more time doing more of those tasks that can have the greatest possible consequences on your life and work. Apply the 80-20 rule. 80-20 रूल बड़ा अप्लाई करना है. वाह मोनी वाह. मयंक राजपूत भी आ चुके हैं. लाली की स्माइल याद करो, जाओ उसे मिलने. हाँ कल जाऊँगा. कल जा सकता हूँ मैं लाली से मिलने. बहुत दिन से मॉर्निंग में गया नहीं ना. बहुत क्यूट है वो लाली. अप्लाई द 80-20 रूल. वंस यू हैव prepared a list of tasks for the coming day, review your list and apply an 80-20 rule before you begin. This 80-20 rule says that 20% of your activities will account for 80% of the values of all your activities.
If you have a list of 10 items to complete, two of those items will be more valuable than the other 8 items combined. Two of 10 tasks will have greater potential consequences than the other 80%. Sometimes it will even be the 90-10 rules that applies. Often one task on a list of 10 items you have to do during the day will continue more value than everything else put together. This task, unfortunately, is usually the task that you will procrastinate on most readily. अब देखो क्या कह रहे हैं. Procrastinate, I guess, the action of delay होता है क्या? Procrastination मतलब the action of delay. Please tell me in the comment section. Procrastination तो मतलब वही होता है. मेरा कुछ हो ही नहीं रहा, ये पॉलिटिक्स खेल मेरे दिमाग में जाता नहीं कुछ. क्या पॉलिटिक्स पढ़नी है क्या? पॉलिटी पढ़नी है क्या? मैं पढ़ाऊँ क्या? बाय द वे अमन जी, आपको लाली का स्माइल करने से याद है, मेरा 10th का बोर्ड है, 12th को एसएसटी का 15 को है. अरे यार मेरे पास बहुत सारे नोट्स पड़े हैं, पढ़नी हो तो बता देना. मेरे पास ना बहुत सारे नोट्स पड़े हैं. SST 215. वेट अ सेकेंड गाइज, वेट अ सेकेंड, एक सेकेंड, यहाँ पे थोड़ा सा इमरजेंसी आ गई है. स्टेट यूनिट पहाड़ी क्यों बोलता हूँ मैं भूल जाता हूँ ये सारी चीज़ें. एक सेकंड रुक जाओ, इतना सब कहाँ से आ गया. ओके लेट्स स्टार्ट. आवाज़ आ रही है ना क्लियर? हिस्ट्री पढ़ा दो ज़रा. ओके हिस्ट्री पढ़नी है. मेरे पास नोट्स है, मुझे यार मुझे निकालना पड़ेगा. मुझे ना प्रीति कल दिन में याद दिला देना. बहुत अच्छी मैं जा रही टाइम टेबल चेक करने. जाओ 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 भाई, डराओ मत. 15 को है ना. हिस्ट्री पढ़ लो, जोग्राफी पढ़ लो, कुछ भी पढ़ लो. Practice creative procrastination. Once you have identified your top 20% of your tasks, you can then practice creative procrastination on the others. Since you cannot do everything, you will have to procrastinate on something. The only question is, which of your tasks are you going to procrastinate on? The answer is simple. Procrastinate on the 80% of tasks that contribute very little of your desired goals and result. Focus your time and attention on completion those one or two jobs that can make the most difference. आपको क्या करना है कि आपको उन दो चीज़ों पे ज़्यादा मेहनत करनी है जो आपकी ज़िंदगी को आसान बनाए, है ना. 15 को है ना भाई, डराओ मत. मैं जा रही टाइम तो नेशनलिज्म इन इंडिया पढ़ा दो. बी राइट बैक. ओके ओके. Practice the ABCD method. Another method of setting priorities is the ABCDE method. अब what is ABCDE method? हमें तो नहीं पता, पढ़ते हैं. This method requires that you review your list of tasks. पहले आपको खुद की list of tasks देखनी पड़ेगी before you begin any and put ABCDE next to each one. The very act of performing this exercise and thinking through your task before you start work will dramatically increase your efficiency and effectiveness once you begin working. And a task is something that is very important. It has serious consequences for completion of the non-completion. Whether you do it or not do it, it can have a major impact on your results and your success. You should always do your A task before something else. If you have more than one task, A task, organize them by priority A1, A2, A3, A4, and so on. Once you have completed this exercise, identify A1 task and focus all your energies on starting and completing this job before you do anything else. And AB task is something that you should do.
It has mild consequences for completion or non completion. For example, calling a friend, going for a lunch with your co worker, or checking your email would be B task. Doing it or not doing it may cause someone inconvenience, but the consequences for your life are minor. अब क्या कह रहा है? अब ए जो टास्क होता है वो आपको सबसे प्रायोरिटी पे करना है, जितनी एनर्जी है सब ए पे लगा दो. अब कह रहा है बी टास्क इज समथिंग दैट यू शुड डू, मतलब आपको करना चाहिए. इट हैज़ अ माइल्ड कॉन्सिक्वेंसेज. अगर आपने नहीं किया तो चलो कोई बात नहीं, अगर आपने उसे नहीं किया तो कोई दुनिया नहीं पलट जाएगी. फॉर एग्जाम्पल कॉलिंग अ फ्रेंड, अगर आपने आज दोस्त से बात नहीं की तो आपकी ज़िंदगी नहीं पलटने वाली. गोइंग फॉर अ लंच विद योर को वर्कर्स, अगर आज आप अपने दोस्तों के साथ खाना खाने नहीं गए या को वर्कर्स के साथ खाना खाने नहीं गए तो आपकी दुनिया नहीं पलट रही. दैट इज़ द टास्क बी, जो कि आपको करना चाहिए रेगुलर बेसिस पे. हफ्ते में एक बार दोस्तों के साथ चले गए, 2 बार चले गए, है ना, वो कर सकते हो. गोइंग फॉर लंच विद योर वर्कर्स और चेकिंग योर ईमेल वुड बी द बी टास्क. आज मेल चेक किया नहीं किया, कल कर लिया, कोई दिक्कत नहीं, मतलब ये सारे टास्क जो बी में आएंगे. सी टास्क क्या होंगे? अ सी टास्क इज दैट टास्क वुड बी नाइस टू डू बट इट विल हैव नो कॉन्सिक्वेंसेज एट ऑल. मतलब सी टास्क क्या है कि आप करोगे तो कोई कॉन्सिक्वेंसेज नहीं है, कुछ टाइम वेस्ट नहीं होगा, मज़ा आएगा. हैविंग अनदर कप ऑफ कॉफ़ी, मतलब एक और कॉफ़ी का कप पी लिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं. चैटिंग विद को वर्कर, थोड़ा सा कर लिया तो कोई ज़्यादा कॉन्सिक्वेंसेज नहीं है. रीडिंग द पेपर, पेपर रीड कर लिया. गोइंग फॉर द शॉपिंग ड्यूरिंग द डे आर ऑल द सी टास्क. वेदर यू डू दैम और नॉट दे विल हैव नो कॉन्सिक्वेंसेज इन योर लाइफ और वर्क एट ऑल. मतलब अगर आपने शॉपिंग पे गए नहीं गए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपकी वर्क लाइफ को. The rule is this: never do B task when there is an A task left undone. क्या बात है, इसको तो माथे पे चिपका लूँगा क्योंकि मैं तो सारे B C D टास्क कर रहा हूँ, A टास्क पे फोकस नहीं कर पा रहा हूँ. तो ये ABCD मेथड आपको भी देखना, आप लोग भी देखना, बहुत ही अच्छी चीज़ है. ABCD टास्क मतलब पहले ए जो टास्क है जो बहुत इंपॉर्टेंट, जो आपको सीखने ही सीखने, सारी एनर्जी वहाँ लगा दो, बाकी जो बचता है उसको दूसरी जगह लगाओ. आगे बढ़ते हैं. Doing it or not doing it may cause some inconvenience, but the consequences for the life are minor. A C task is a task that would be nice to do, but it will have no consequences at all. Having another cup of coffee, chatting with coworker, reading the paper, or going with the shop हो चुका है. And what is the task B? Keep focused on your A task throughout the day. And fourth, D task is something that you can delegate to someone else who works at a lower hourly rate than you do or than you want to earn. The rule is that you should delegate everything you possibly can so that you have more time to devote to your A task, the one that determine most of your success and happiness life in life and work. 5. An e-task is something that you can eliminate altogether. These can be all activities that are no longer important in the achievement of your most important goals today. Much of what you do during the day or week can be eliminated with no consequences at all. द लॉ ऑफ एक्सक्लूडेड अल्टरनेटिव. अब क्या है द लॉ ऑफ एक्सक्लूडिव अल्टरनेटिव? क्या चीज़ है देखते हैं. यू आर ऑलवेज फ्री टू चूज इन दिस आर बाय आर एंड मिनट बाय मिनट, चूजिंग ऑफ वॉट यू विल डू and simultaneously what you will not do. Your entire life is made. The law of excluded alternative says that doing one thing means not doing something else. Whenever you begin a task of any kind, you are seriously unconscious deciding not to do any other task that you could do at the moment. Your ability to choose wisely in terms of what you do second, and what you don't do at all determines the entire life. Stay tuned with Aman Rawat on this channel.
Where is एक सेकेंड ओके. Choose the most valuable task. Successful, highly paid people are usually no more intelligent or skilled than successful, lowly paid people. The major difference between them is that successful people are always working on tasks of higher value. अब क्या होता है कि जितने भी सक्सेसफुल लोग होते हैं वो क्या करते हैं, जिस चीज़ में ज़्यादा टाइम देना होता है ना उसी चीज़ में ज़्यादा टाइम देते हैं. ये नहीं कि भाई आज मूवी देख ली, आज ये कर लिया, आज वो कर लिया. वो उनका टास्क है, जैसे आज मुझे ये स्किल सीखनी है, आज मैंने डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कंप्लीट करना है, मतलब करना है. एक दिन में नहीं होता वैसे, पर मतलब जो भी है ओवरव्यू. जैसे आज मुझे फेसबुक से पैसे कमाना सीखना है, इंस्टाग्राम से पैसे कमाना सीखना है, तो आज ही आप वो 8-9 घंटे अपने इन्वेस्ट करके कमाना सीख सकते हो. फिर उसके बाद आपके पास पूरी लाइफ पड़ी कैसे मैनेज करनी है चीज़ें, है ना. तो बस वही चीज़ें होती हैं. अनसक्सेसफुल पीपल आर ऑलवेज किलिंग टाइम ऑन टास्क ऑफ लो वैल्यू एंड यू आर ऑलवेज फ्री टू चूज़. You are always free to choose what you do more and what you do less of. Your choices ultimately determine everything that happens to you. Practice handling on each task. Single handling is one of the most powerful time. अब क्या, single handling is the most powerful time and personal management techniques of all. What this means is that once you have selected for your A1 task, you start on that task and work on it with a single-minded concentration until it is 100% complete. You are disciplined yourself to concentrate without diversion or distraction. If you find yourself getting distracted or feel tempted to take a break or procrastinate, you can motivate yourself by continually repeating back to work, back to work, and back to work. Then you renew your efforts to push the task through the completion. Thomas Edison once wrote, "My success is due to more my ability to work continuously on one thing without stopping than to any other single quality." You should practice this principle as well. Create chunks of time. Plan your day in advance and create 30, 60, and 90 minutes chunks of uninterrupted work time. These are time blocks when you can work without interpretations or pause on your most important task. These chunks are essential for accomplishment of any large important task. One way to create long periods of work time is to rise early and work non-stop without interpretation on a major task project or proposal. Sometimes you can create chunks of time in the evening or weekends, but the fact is all important jobs, those with serious potential consequences, require large chunks of single minded concentrated time and energy. मतलब देखो होता है ना कि हम लोग क्या करते हैं कि कभी कभी हम इधर चले गए, कभी कभी उधर चले गए, कभी बिजी हो जाते हैं. बट सिंगल चीज़ है कि याद रखना, जिस एबिलिटी को आपको सीखना है, जिसके ना सीखने से आप पीछे रह रहे हो, तो उसके बहुत ज़्यादा कॉन्सिक्वेंसेज हो रहे हैं ना कि आपको दुनिया से पीछे रह रहे हो. तो आपको अपने सिंगल माइंडेड गोल रखना है कि एक चीज़ पहले ये करनी है. छोटा छोटा हर जगह हाथ मारोगे तो कुछ नहीं सीखोगे. एक जगह पे चिपक जाओ. बिल्कुल, जोक को देखा है, वो तब तक नहीं छोड़ता जब तक उसके सर पे नमक न गिराओ. वैसे ही बनना है. बी लाइक अ जोक, जियो के ही वाला नहीं, ठीक है, जो बिल्कुल चिपक जाता है एक चीज़ से, वैसे ही बन जाना. Sometimes you can create chunks of time in evening or on weekends, but the fact is all important jobs, those with serious potential consequences, require large chunks of single-minded, concentrated time and energy. Earl Nightingale once said, "Every great accomplishment of mankind has been preceded by an extended period, often over many years, of concentrated efforts." क्या लिखा है अर्ल नाइटिंगेल्स ने? एवरी ग्रेट अकम्पलिशमेंट ऑफ मैन काइंड हैज़ बीन प्रेसिडेड बाय एक्सटेंडेड पीरियड. मतलब किसी ने भी ज़िंदगी में कोई अचीव किया है तो उसको टाइम लगा है. ऑफ्टन ओवर मैनी ईयर्स ऑफ कंसनट्रेटेड एफर्ट्स, मतलब बहुत टाइम के कंसनट्रेटेड एफर्ट के बाद ही चीज़ें मिली. ऐसा नहीं कि तुरंत मिल जाती है चीज़ें.
ओके, तो हम लोग कहाँ थे? कीप योर सेल्फ ऑन ट्रैक each day before you begin, and as long as you go through the day, there are 5 questions that you need to ask and answer over and over again. The first of these questions is, why am I on the payroll? What exactly have you been hired to accomplish? Imagine your boss asking you, why do we pay you money around here? What would be your answer? The fact is that you have been hired to achieve specific results that have economic value to organization. The fact that you have been hired to achieve specific result, अगर आपको कोई हायर करता है तो आपको आपसे वो कुछ काम चाहता है. मतलब होता है ना, जैसे आपको 20,000 में अगर कोई जॉब दे रहा है तो आपसे 40,000 का काम निकलवाएगा. 1 लाख सैलरी दे रहा है तो 2 लाख से 6 लाख 10 लाख का काम निकलवाएगा आपसे. और अगर आप नहीं करके दोगे तो टाटा बाय बाय कर देगा. And all of your result, 20% of what you do contributes 80% of your values. You must be crystal clear about exactly why you are on the payroll, and then focus your time and attention all day long on doing exactly those tasks that make the greatest difference to your business or organization. Focus on high values activities. The second question that you should ask yourself all day long is, what are my highest value activities? क्या आज आपको पूछना है अपने आप से, क्या वो highest value activities है जो कि आपको सीखनी है. If you love trading, ट्रेडिंग सीखो, आज ही पूरा चिपक जाओ उस पर. अगर आपको पसंद है डिजिटल मार्केटिंग तो उससे पढ़ो. अगर आपको पसंद है गेमिंग तो उसके बारे में पढ़ो, फिर गेम खेलो, जो करना है करो. पर जिस चीज़ के पीछे पढ़ना है पढ़ जाओ, बस एक सिंगल चीज़ के पीछे, और करते रहो बस. अच्छी चीज़ों में टाइम लगता है, जो चीज़ अचानक से मिल जाए वो जाती भी उतनी जल्दी है. द एक्टिविटीज़ दैट रिप्रेजेंट द हाईएस्ट एंड बेस्ट यूज़ योर टैलेंट, स्किल्स, एक्सपीरियंस एंड एबिलिटीज़ एज देर रिलेट टू योर कंपनी, करियर, ऑर्गेनाइजेशन. व्हाट आर दे? आपको ये सोचना है कि क्या एबिलिटी है जो आज आपको अपनी फील्ड से रिलेटेड चाहिए ही चाहिए. उसे लिखो तो पहले. अरे हाँ भाई, तुमसे ही कह रहा हूँ, लिखो. अरे भाई स्क्रीन ना टूट जाए. हाँ, तो इन चीज़ों को लिखो पहले, ठीक है. अगर लिखोगे नहीं तो पहचानोगे कैसे अपने आप को. इफ़ यू आर नॉट एब्सोल्युटली श्योर ऑफ आंसर, गो एंड आस्क योर बॉस व्हाट ही और शी थिंक्स और द हाईएस्ट वैल्यू. वेट अ सेकेंड, गिव मी 1 to 3 minutes. Okay. Whatever the answer, dedicate yourself to working on these specific tasks all day long. Work on your key results. The third question you should ask all day long is, what my key result areas? क्या है आपके key result areas? As we mentioned earlier, your key results areas are the tasks that you absolutely positively must complete in excellent fashion if you are to achieve the most important results required of your job. They largely determine your success or failure at work. You should clearly identify each of these tasks and then focus on not only performing at the best in each of them but also at becoming better in each key result area every day. Remember your weakest key skill sets that height at which you can use all your other skills. Don't allow yourself to be held because of a weakness in one area, especially when you can learn anything you need to know to excel in that particular area. Don't allow yourself to be held back because of a weakness in one area. अगर आप किसी चीज़ में कमज़ोर हो तो पीछे पैर मत हटाओ. Especially when you can learn anything you need to know to excel in a particular area. अगर आपको कुछ सीखना है, आप किसी भी चीज़ में एक्सेलेंस हासिल कर सकते हो. बस जो चीज़ टफ लग रही है उसको टफ सोच के पीछे कदम मत हटाओ. मेक अ डिफरेंस. द फोर्थ क्वेश्चन यू शुड आस्क योर सेल्फ थ्रू आउट द डे इज दिस, वॉट कैन आई एंड ओनली आई डू, वॉट इफ डन वेल will make a real difference to my company. What can I do? What can I and I can only I do
ऐसी क्या चीज़ है जो कि सिर्फ मैं कर सकता हूँ और मैं ही कर सकता हूँ अपनी कंपनी को एक नई दिशा दिखाने के लिए. स्टे ट्यून्ड विद अमन रावत. वी आर डूइंग लाइव सेशंस ऑन द बुक रीडिंग चैलेंज. और आज हमारे साथ कोई भी नहीं जुड़ा है. क्या बात है, हम ही अपना गला फाड़े जा रहे हैं अकेले. अरे प्रियदर्शनी आ गई. मैं भी ताना मार ही रहा था कि कोई नहीं आया हमारी स्ट्रीम में, हम ही अकेले चिल्ला रहे हैं. ओके माय ब्यूटीफुल यूट्यूब फैमिली, स्टे ट्यून. अरे हम जा रहा वॉशरूम, कहाँ क्या चले गए, कोई आपसे बात ही नहीं किया. हाँ, आप ही का सहारा है और आप ही चले गए. चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं. यू शुड क्लियरली आइडेंटिफाई ईच ऑफ दीज टास्क एंड देन फोकस ऑन not only performing at the best in each of them but also becoming better in each key result area day. Remember your weakest key skill sets and the height at which you can use all your other skills. Don't allow yourself to be held back because of weakness in one area, especially when you can earn anything. You need to know to excel in that particular area. Make a difference. The fourth question you should ask yourself throughout the day is this: what can I only do, only I do, that if done well will make a real difference to my company? This is one of the best questions of all for keeping yourself focused and on track. What is that you and only you can do that can make the greatest difference in your career? Again, if you are not sure of the answer, ask your boss. Sometimes he or she will not have thought this through before you ask the question. Sometimes he or she will not have thought about it all. But once both of you are in agreement on the one or two tasks you can do that will make more of a difference than anything else, you should focus all of your energies on performing those particular tasks quickly well. This will do more to help you in your career than any other single decision you make. The most important questions of AI. The most important question of AI क्या है? The fifth question, that perhaps the best question in all of time management, is this: what is the most valuable use of my time right now? All technique and methods of goal setting, personal planning, and time management are aimed at helping you to accurately answer this question every minute of every day. When you discipline yourself to ask and answer these questions repeatedly, and you are sure whatever you are doing is answer to this question, you will start accomplish 2 or 3 times as much as the people around you. You will become more and more productive. You will plow through more work or higher value of accomplishment, greater result than more anyone around you. Discipline yourself to keep working on the most valuable use of your time, whatever it may be at the moment, and you will be successful. आगे बढ़ते हैं. बिकम इंटेंसली रिजल्ट ओरिएंटेड. आपको मतलब रिजल्ट ओरिएंटेड बनना है. दूसरा एमडी थक्कर का होगा. मेंस डबल में एक हमारा पड़ला भारी है, दूसरा मेंस डबल टक्कर का होगा. नॉइस. हमारा किसके साथ हो रहा है मैंने देखा नहीं है. मैंने इंडिया का स्केड्यूल ही नहीं देखा. इंडिया का स्केड्यूल क्या होने वाला है यार, बता दो जरा. किसके साथ है हमारा मैच? मैंने आज देखा ही नहीं है. देख के आऊँ क्या? हाथों में ही रहती है वैसे मेरी सारी इन्फॉर्मेशन. देखने का समय नहीं होता. बस मुझे स्केड्यूल भी बनाना है. अब इसके बाद स्केड्यूल बनाऊँगा. इंडिया डेनमार्क का है.
अरे इंडिया का डेनमार्क के साथ है क्या? अरे निपटा देंगे हम तो सबको, इंडिया निपटा देगा भाई, सबको निपटा देगा। इंडिया का सेमीफाइनल होने वाला है डेनमार्क के साथ। क्या बात है, क्या बात है, शानदार शानदार। मुझे लग रहा है जापान तो नहीं, इस बार इंडोनेशिया और इंडिया का ही ना हो जाए फाइनल। जापान की 2 टीम पहुंच चुकी है थॉमस कप, थॉमस और ऊबर कप दोनों में। अच्छा, थॉमस कप का सेमीफाइनल है, थॉमस कप का सेमीफाइनल इंडोनेशिया वर्सेस जापान। अरे यार वो ही नहीं आया। चलो इंडिया की तो वीडियो सारी बना सकते हैं क्योंकि टाइम बहुत है ना, 4:30 PM है, तो सारी वीडियो बन जाएगी, कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर इंडोनेशिया और जापान की भी सारी वीडियो बना देंगे, और जापान और कोरिया में कैंटा मोमोटा होगा तो उसकी वीडियो बना देंगे, और देखते हैं कोई अच्छे अच्छे प्लेयर्स होंगे उन सबकी बना देंगे। होप फॉर द बेस्ट। इंडिया की तो सारी वीडियो बन जाएगी, हेड टू हेड बन जाएगा, रिजल्ट वीडियो भी बन जाएगी। कल मैचेस कम है ना तो ईजीली मॉनिटर कर सकते हैं। इंडोनेशिया एंड कोरिया तगड़े खेलते हैं, इंडोनेशिया एंड मलेशिया भी बहुत अच्छा खेलते हैं, चाइनीज़ ताइपाई भी अच्छा खेल रहा है, हम चाइनीज़ ताइपाई से भी आ रहे हैं वुमेंस टीम से। In the financial analysis, the key to high productivity and performance is this: dedicate yourself to getting better and better at the few tasks that you do that account for the most of your results. Simultaneously learn and delegate, outsource and eliminate all those tasks and activities that contribute very little to your results and rewards. As Goethe said, the things that matter most must never be at mercy of the things that matter least. Perhaps the best single word in the time management is word no. Just say no to any demand on your time that is not the most valuable use of your time and at the moment. अब क्या है? Develop the habits of time management. अपनी हैबिट्स बनाओ टाइम मैनेजमेंट की। द गुड न्यूज़ इज़ दैट टाइम मैनेजमेंट इज़ अ स्किल एंड डिसिप्लिन दैट यू कैन लर्न विद प्रैक्टिस। मतलब टाइम मैनेजमेंट एक स्किल है जो कि आप सीख सकते हो डिसिप्लिन के थ्रू। वन रूल फॉर सक्सेस इज दिस: डेवलप गुड हैबिट्स एंड मेक देम योर मास्टर्स। अपनी पहले तो अच्छी हैबिट्स बनाओ और उसे मास्टर कर लो, सिंपल सी बात। सिंगल में बहुत भारी है डेनमार्क, हाँ ये तो है लक्ष्य। अरे यार, अरे लक्ष्य और विक्टर एक्सेल्सन को ही डराते रहते हैं क्या? श्रीकांत एंटनसन हरा देगा, रेजमस गेमकी प्रणव एच एस रेजमस गेमकी को हरा देगा। लक्ष्य सेन और विक्टर एक्सेल्सन की भरपाई करनी पड़ेगी दोनों को, श्रीकांत और प्रणव को मैच जीतने ही पड़ेंगे। सिंगल में बहुत भारी है डेनमार्क। नहीं 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 नहीं, ये इंडियंस ही अच्छा नहीं खेल रहे बैडमिंटन यार। अरे 25 साल बाद यहाँ तक पहुँचे हैं भाई, अब तो अच्छा खेल रहे हैं। आज ही तो अच्छा खेला है, मतलब जब भी मैंने देखा तो इंडियंस हार रहे हैं। हाँ, आप जब भी देखते हो तब सेमीफाइनल्स या फाइनल चल रहे होते हैं। डबल्स में हमारा पटला भारी, थोड़ा भारी है। डबल्स में हमारा एक ही तो प्लेयर है, सत्विक सराज और रैंकी रेड्डी जी, दूसरा तो ठीक ठाक है। कम मत समझो भाई डेनमार्क के प्लेयर को, रैंकिंग कम है इसका मतलब ये नहीं खतरनाक नहीं है। यू कैन बिकम एक्सीलेंट एट टाइम मैनेजमेंट विद डेली प्रैक्टिस। मेक अ लिस्ट ऑफ योर टास्क एवरी डे बिफोर यू बिगेन। Organize your list by priority, separating the urgent from important and using 80-20 rule above or ABCD method. Choose you most important task and then begin working immediately on that task. ठीक है, आपको ABCD मेथड लगाना है जिसमें A नंबर 1 टास्क जिसको किए, अगर आपने किया नहीं तो आप बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस झेलने पड़ेंगे। जैसे मम्मी ने बोला है कि कपड़े सुखा दो, अगर आपने वो नहीं किया तो आप मम्मी का गुस्सा झेलेंगे और मम्मी आपको धून देगी। ठीक है, तो नंबर 1 टास्क हो गया कपड़े सुखाना, अगर मम्मी ने बोला है तो। माँ ने कोई काम बोला और वो नहीं किया तो नंबर 1 ये टास्क है, करना ही करना है, वरना उसके कॉन्सिक्वेंसेस आपको घर से बाहर निकलना भी देखना पड़ सकता है या फिर कुछ भी हो सकता है। हर घर की अलग अलग कहानी है, किसी के पास उड़ती हुई चप्पल आती है तो किसी के पास कुछ और आता है ना। डिसिप्लिन योर सेल्फ टू कंसंट्रेट सिंगल माइंडेडली ऑन दैट वन टास्क और एक्टिविटी अंटिल इट इज़ 100% कम्प्लीट। अपने आप को इतना डिसिप्लिन कर लो कि साला एक चीज़, मतलब एक चीज़ के पीछे चिपक जाओ और तब तक उसे करो जब तक वो ख़त्म ना हो जाए। अब जैसे मैं इस बुक के पीछे चिपक चुका हूँ, मैं इसे ख़त्म करके ही दम लूँगा, चाहे थोड़ा दिन लग जाए पर मैं ख़त्म करूँगा इसे। चलो अब 40 मिनट हो गए, चिपक जाऊँगे इस पर।
गुस्सा आ रहा है मेरे को, चिपक जाऊंगा मैं। फ्यूचर स्टार्स है ये दोनों। ओके, अब ये क्या ही है, कृष्णा विष्णु बहुत तगड़ा है, कभी मैच लाइव देखा करूँ। हाँ यार, मैं देखा था, अच्छा तो खेलते हैं, पर डेनमार्क की भी बात कर रहा हूँ मैं, कि मैं ये नहीं कह रहा कि अच्छा नहीं खेलते, अच्छा खेलते हैं, बट अकॉर्डिंग टू डेनमार्क थोड़ा सा टफ रहेगा मैच, ईजी नहीं रहेगा, टफ रहेगा। जीतेंगे तो पक्का इंडिया वाले ही, पर थोड़ा टफ देखने को मिलेगा, ये मेरा कहना है। कुछ भी मलेशिया, आज ही तो हरा दिया इंडिया ने। कोरिया ओके ओके है, इंडोनेशिया मलेशिया भारी है बैडमिंटन में। हाँ नहीं, इंडोनेशिया और मलेशिया है भारी, मानो ना मानो भारी है, बट इस बार हम लोग जीत गए, और वो भी 3-2 से जीते हैं, तो मतलब लगभग बाल बाल बचे हैं। टू कंसंट्रेट सिंगल माइंडेडली ऑन दैट वन टास्क और एक्टिविटी अंटिल 100% इज कंप्लीट। ईच टाइम यू कंप्लीट एन इंपॉर्टेंट टास्क यू विल एक्सपीरियंस अ बर्स्ट ऑफ एलिएशन। मतलब क्या होता है कि हाँ, ये तो मैंने देखा है कि अगर कोई चीज़ हम लोग करना चाहते हैं ना, तो हम लोग बड़े खुश से हो जाते हैं, अरे वाह हो गया, ये हुई ना बात, ये बात। ईच टाइम you complete an important task, you will experience a burst of elation, enthusiasm, and frightened self-esteem. You will feel more energized and stronger. You will feel happier and more in control of your life. You will feel on top of the work. You will be even more motivated to start and complete your next major task. Whenever you find yourself slowing down or experiencing the urge of procrastination or delay, procrastination मतलब action of delay, repeat to yourself, do it now, do it now, do it now, do it now. अगर कभी ऐसा लग रहा हो कि यार वो डिले हो रहा है, डिले हो रहा है, तो आप अपने अंदर से बोलो डू इट नाउ, डू इट नाउ, डू इट नाउ। सारी चीज़ें छोड़ो, डू इट नाउ। डेवलप द सेंस ऑफ अर्जेंसी, अपने अंदर लाओ कि भाई ये काम करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, ये करना ही करना है, इसको नहीं किया तो बस ज़िंदगी ख़त्म। क्रिएट अ बायस फॉर एक्शन, मतलब अपने काम के लिए थोड़ा सा बायस हो जाओ। गेट स्टार्टेड, गेट गोइंग एंड वर्क फास्ट, खड़े हो, काम करो और जल्दी से जल्दी करो। डिसिप्लिन योरसेल्फ टू सेलेक्ट योर मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क, launch into it immediately and then stay with it until it is done. These time management practices are the key to peak performance in every part of your life. ये टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए, जो चीज़ इंपॉर्टेंट है उसे सबसे पहले प्रायोरिटी में रख के काम ख़त्म करो। अरे भाई, अभी एक बंदा सा फीमेल माउस सामने से गुजरा, कितना बड़ा था। मैनेज योर टाइम वेल, अपने टाइम को मैनेज करो अच्छे से। मेक अ लिस्ट ऑफ एवरीथिंग यू वुड लाइक टू बी और डू हैव इन द मंथ्स एंड ईयर्स ahead. Analyze your list and select those items that can have the greatest possible consequences on your life. अब क्या है, हर चीज़ की लिस्ट बनाओ। मेक अ लिस्ट ऑफ एवरीथिंग यू वुड लाइक टू बी or do or have in the months of years ahead. Analyze your list and select those items that can have the greatest possible consequences of your life. The evening before, make a list of everything you have to do the next day. Let your subconscious mind work on your list while you sleep. Organize your list by priority using 8 to 20 rule outlined in the chapter and ABCDE method. Separate the urgent from the non-urgent and the important from non-important before you begin. Select the most important task, one with the greatest possible consequences for a completion or non-completion. The circle it, making it your A1 job. Begin working immediately on your most important task and then discipline yourself to concentrate single-mindedly on this one task until it is 100% complete. मतलब अपने दिमाग को फोकस कर लो कि ये चीज़ करनी है। तो मैंने कहा था आपको कि मैं 24 पेज तक पढ़ूंगा और 24 पेज कंप्लीट हो चुके हैं। मतलब 24 नहीं, मैंने 12 से शुरू किया था और 22 पे ख़त्म करना था, 24वां पेज हो चुका है। रिव्यू योर गोल्स डेली, अपने गोल्स को बार बार देखो, क्या वो अचीव हुए, क्या वो नहीं हुए। ओ माय गॉड, नहीं हुए, चलो फिर से काम करते हैं। हाँ, हम लिस्ट में रखेंगे अमन जी के साथ लाली को एक बिस्किट खिलाना। ओके, डन डन डन, लाली के बिस्किट। हाँ यार, लाली को भी कब से नहीं मिलने गया हूँ मैं, जाऊँगा यार। बीच में गया था मैं वैसे वहाँ पे मैंने सबसे बातचीत कर रखी है, तो सब लोग लाली को प्यार कर लेते हैं। बट वो होता है ना कि वो जो उसके चेहरे में मुस्कुराहट आती है मुझे देख के और मम्मी को देख के, तो वो अलग ही होती है। किताबी और लक्ष्य के लिए तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है, कल के मैचेस पढ़ने से उम्मीद रखनी पड़ेगी। अरे यार, लक्ष्य सेन का मैच खतरनाक है। एंड्रेस एंटनसन इतना खतरनाक है क्या? किताबी हरा तो चुका है पहले भी। एंड्रेस एंटनसन ज़्यादा टफ तो नहीं है किताबी के लिए मेरे हिसाब से,
फेस ऑफ में काफ़ी ज़्यादा मैचेस जीत चुके हैं, अगर 5 फेस ऑफ हुए होंगे तो 4 किताबी जीते होंगे। इतना टफ है क्या एंडरसन एंटनसन? अच्छा तो है वो, मुझे पता है, पर किदाम्बी श्रीकांत के आगे अच्छा नहीं होगा। हालांकि प्रणव एच के भी काफ़ी टफ मैच होगा, पर किदाम्बी और लक्ष्य सेन का तो भाई मतलब वो तो मानकर चलो कि 90-10 रेशियो है। विक्टर एक्सेल्सन खतरनाक है भाई, पर लक्ष्य सेन कर सकता है, मेरे हिसाब से कर सकता है। मेरे हिसाब से लक्ष्य सेन फॉर्म में भी है, मतलब फॉर्म में तो अभी इतना नहीं है, पर फिर भी कर सकता है लक्ष्य सेन। एंडरसन वर्ल्ड रैंक 3, काफ़ी अटैकिंग प्लेयर है। हाँ अच्छा, देखते हैं कल क्या होता है। इट इज़ वो सब छोड़ दो। किदाम्बी श्रीकांत ने एक दो टूर्नामेंट नहीं खेले थे कोविड के चक्कर में, याद है ना, इस वजह से रैंकिंग भी डाउन हो जाती है। इट इज़ अ साइकोलॉजिकल लॉ that whatever we wish to accomplish we must impress on the subjective or subconscious mind। तो बार बार यहाँ पे हर किताब में सबकॉन्शियस माइंड के बारे में लिखा है क्या ये सबकॉन्शियस माइंड, इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। ये हमारा जो दूसरा भेजा है ना, उसके बारे में बहुत डीप रिसर्च करनी पड़ेगी। तो उसी के लिए मेरे पास एक और बुक है जो कि मैं अभी रिसेंटली खरीद के लाया हूँ, दिस इज़ द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। ठीक है, अब हमने पढ़ तो लिया सबकॉन्शियस माइंड को, बोलो ये करो, पर उसकी पावर को पहले जान तो लें, क्या वो ये कर सकता है, तभी तो बिलीव करेंगे। जब किसी ने लिखा हो या फिर कहीं से हम सुनते हैं ना, तो हम बिलीव कर लेते हैं। बट अगर कोई बोलेगा हमें आ जाओ भाई दिमाग की ताकत को बढ़ाओ, या फिर आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको ये चीज़ें दिला सकता है, तो नहीं मानोगे आप। बट कोई अगर बड़ा व्यक्ति कोई कह दे आपसे आकर हाँ ऐसा होता है यार, मेरे साथ भी हुआ है, तब आप मान जाओगे, अभी नहीं मानोगे। Sometime I ask audiences how many people here would like to double their income। तो जब वो सेमिनार्स करते हैं ऑथर, तो वो पूछते हैं कि यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं उतनों में से कितने लोग अपनी इनकम को डबल करना चाहते हैं। नॉट सरप्राइजिंगली एवरीवन रेज हैंड्स, सब लोग हाथ खड़ा करते हैं। आई देन गो ऑन से वेल आई हैव अ गुड न्यूज़ फॉर यू, एवरीबडी हेयर इज गोइंग टू डबल देयर इनकम गारंटीड इफ़ यू लिव लॉन्ग इनफ। वो कह रहे हैं कि आप अपनी तनख्वाह को डबल कर दोगे अगर आप ज़िंदा ज़्यादा देर तक रहे तो। इफ़ योर इनकम इंक्रीजेज द रेट ऑफ 3% to 4% per year, the average annual cost of living increase, you will double your income in about 25 or 30 years। That this is a long time to wait, so real question is about doubling your income, the real question is how fast you can do it। ठीक है, अब क्या है कि हर साल आपकी 3 से 4% की रेट में आपकी एवरेज सैलरी बढ़ेगी। तो अगर आप जितना ज़्यादा ज़िंदा रहोगे उतना ज़्यादा कमा पाओगे, ऐसा तर्क दिया है। बट मेन चीज़ है कितना जल्दी आप उस चीज़ को हासिल करोगे, डबल इनकम को कितना जल्दी हासिल करोगे। देखो पैसा तो आपके डबल हो ही जाएगा, अगर आप किसी भी कंपनी में 10 साल काम करते हो तो आप इतना अच्छा कमा लोगे, है ना। पर बात वही है, 10 साल कौन देगा आप किसी कंपनी को, इससे बड़ी अपनी कंपनी खोल के काम ना कर लें। So the real question is not about doubling your income, the real question is how fast you can do it. Double the speed of goal attainment. Many techniques can help you to achieve your personal and financial goal faster. In this chapter, I want to share with you a special method that has taken more people from rag to riches than any other single method ever discovered. It is a simple, fast, effective, guaranteed to work if you will practice it. Earlier, I said you became what you think about most of the time. This is the great truth that underlies all religion, philosophy, psychology, and success. As a teacher of mine, John Boyle, once said, whatever you can hold in your mind on a continuing basis, you can have. This is the key. Positive thinking versus positive knowing. Many people today talk about importance of positive thinking. Positive thinking is important, but it is not enough. Left undirected and uncontrolled positive thinking can quickly degenerate into positive wishing and positive hoping। तो क्या होता है कि अगर आपने पॉजिटिव थिंकिंग को थोड़ा सा कंट्रोल फॉर्म में नहीं रखा, डायरेक्ट फॉर्म में नहीं किया, तो वो पता है क्या हो जाता है, वो डीजनरेट होके पॉजिटिव विशिंग, अरे इतना पॉजिटिव भाई, ये तो मतलब ऐसा होता है कि मैं तो रातों रात मिलियन कमा सकता हूँ। पॉजिटिव थिंकिंग ज़्यादा हो जाए तो ऐसी चीज़ें हो सकती है, वो इतना बिलीवर बन जाएगा कि उसे लगेगा कि रातों रात मैं अमीर बन जाऊँगा, करोड़पति बन जाऊँगा। बट दैट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर सम पीपल। किसी के लिए है, किसी के लिए है, किसी के लिए नहीं है। माई नेटवर्क इज़ डाइंग। ओके ठीक है, चलो फिर इस पेज को ख़त्म कर लेते हैं बस। To be focused and effective in goal attainment, positive thinking must translate into positive knowing।
ठीक है, पॉजिटिव थिंकिंग को आपको पॉजिटिव नोइंग में करना होगा कन्वर्ट. यू मस्ट एब्सोल्युटली नो एंड बिलीव इन द डेप्थ ऑफ योर बीइंग दैट यू आर गोइंग टू बी सक्सेसफुल एट अचीविंग अ पर्टिकुलर गोल. आपको अंदर से फील आना चाहिए कि आप उस गोल को अचीव कर सकते हो. यू मस्ट प्रोसीड कंप्लीटली विदाउट डाउट. आपको प्रोसीड करना है विदाउट एनी डाउट. यू मस्ट बी सो रेजोल्यूट एंड डिटरमाइंड, सो कन्विंस्ड ऑफ योर अल्टीमेट सक्सेस दैट नथिंग कैन स्टॉप यू. Program your subconscious mind. Everything that you do to program your subconscious mind with the unshakable conviction of success will help you achieve your goals faster. This method I am going to share with you can actually multiply your talents and abilities and greatly increase the speed at which you move from wherever you are to wherever you want to go. One of the most important mental laws is whatever is pressed is expressed. जो भी आप impress करोगे वही express होगा. Whatever is impressed is expressed. जो मतलब कोई किसी से भी अगर impress होता है तो वो क्यों होता है? क्योंकि उसने अपने को अच्छे से express किया है. Simple. Whatever you impress deeply into your subconscious mind will eventually be expressed in your external world. मतलब जो भी आप अपने दिमाग में अच्छी बातें सोचोगे वही चीज़ें रियल वर्ल्ड में हो जाएगी by the help of subconscious mind. Your aim in mental programming is to impress your goals deeply into your subconscious mind so that they lock in and take on a power of their own. This method helps you to do that. Good. लास्ट टाइम ऐसे ही बोल दी थी, रात भर ही रख ली तो फ़ोन, दिन काफ़ी ने तेरे लिए. एंड उसी दिन अमन जी का लाइव में आना शुरू. क्या था आज? अरे आज मम्मी ने गुस्सा में बोल दिया एग्ज़ाम ख़त्म हो जाए तेरा, फिर तू 15 बिना खाए सोए गेम खेलने में कुछ ना बोलूँगी. मैंने बोला डील. लास्ट टाइम ऐसे ही बोल दी थी, फिर रात भर ही रख ले तो फ़ोन, दिन काफ़ी नहीं तेरे लिए. एंड उसी दिन अमन जी का लाइव में आना शुरू. रात भर ही रख ले. थैंक्स टू आंटी जी, थैंक्स टू आंटी जी. नमस्ते बोलना मेरी तरफ से. उनकी वजह से मुझे एक बहुत ही प्यारा सपोर्टर मिल गया. काफ़ी टाइम से सपोर्ट कर रही है हमारी प्रीति जी. रोज़ लाइव में आके रेगुलरिटी बना दी है. ऊपर से अभी हम लोग एक छोटू प्रोजेक्ट भी कर रहे हैं. प्रीतिशा जी और मैं अब छोटू की शॉर्ट्स डालेंगे दबा के, छोटू को फेमस करेंगे, फिर छोटू के साथ 1 मिलियन का केक काटेंगे. ठीक है, छोटू को फेमस बनाना है. अच्छा है वो, बहुत प्यारा है, क्यूट है. उसके दांत देखे मैंने आज. अच्छी थी रील मैंने बनाई थी. कैसी थी? मैंने वो कैप्शन में आपका भी वीडियो क्रेडिट दिया था, छोटू का भी बोला था स्टारिंग छोटू. कैसी थी वीडियो? गाना अच्छा लग रहा था, बिल्कुल शिनचैन ही लग रहा था जब उसे ऐसे कर रहा था, ऐसे ऐसे अंगड़ाई ले रहा था ना. ही लुक्स वेरी क्यूट. आज छिपकली दीवार से मुंडी उठा के घूर रही, अजीब लग रहा था बहुत. चप्पल फेंक के मारो उसके ऊपर. किल हर. छिपकली को देखो तुरंत मार दो. जस्ट किडिंग, मत मारो, जाने दो. देखने दो उसे, उसको भी देखने दो यार. ये क्या है ये लोग. मुझे पर्सनली छिपकली पसंद नहीं है, इसलिए मेरा फर्स्ट रिएक्शन रियल रिएक्शन होता है हमेशा. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. वन ऑफ द मोस्ट important mental law is whatever is impressed is expressed. Whatever you impress deeply into your subconscious mind will eventually be expressed in the external world. Your aim is to mental programming is to impress your goals deeply into your subconscious mind so that they lock in and take on a power of their own. This method helps you to do that. तो ओके, हम लोग 226 पेज नंबर पे हैं और सिस्टमैटिक वर्सेस रैंडम गोल सेटिंग्स. ठीक है, अब क्या है सिस्टमैटिक. कुछ लोग सिस्टमैटिक तरीके से करते हैं, कुछ लोग रैंडमली करते हैं. फॉर मैनी ईयर्स आई वर्कड एट माई गोल्स, राइटिंग देम डाउन once or twice a year and then reviewing them whenever I got a chance. Even this was enough to make an incredible difference in my life. Often I would write down a list of goals for myself in January and coming year. Wait.
Even this was enough to make an incredible difference in life. Often I would write down a list of goals for myself in January for the coming year. In December of that year, I would review my list and find that most of the goals had been accomplished, including some of the biggest and most unbelievable goals on the list. I then learned the technique that changed my life. I discovered that it if it is powerful for you to write down your goals once a year, it is even more powerful for you to write down your goals more often. Some authors suggest that you write down and review your goal once a month, other once a week. What I learned was the power of writing and reviewing, rewriting your goals every single day. तो उन्होंने क्या सीखा कि जो हम अपने गोल्स के बारे में लिखते हैं ना, नेट ताटी चल ही नहीं, नेट है बेकार सा चल ही नहीं रहा है, आपका वीडियो अटक अटक कर 3 सेकंड में आ रहा है. ओके तो फाइनली टाइम भी कंप्लीट हो ही चुका है. एक पेज और पढ़ सकते हैं वैसे, क्योंकि अभी 56 हो रहे हैं ना, 4 मिनट है तो पढ़ ही लेते हैं. अब क्या लिखा है उसने कि आप जितना आप अपने राइटिंग की पावर को पहचानोगे ना, जितना आप लिखोगे उतना फ़ायदा है. किल्ड मच्छर बच गया, लिख दूंगा तेरे ऊपर मच्छर, गोल लिख दूंगा तेरे ऊपर, फिर उड़ता रही हो गोल के साथ. ठीक है आगे बढ़ते हैं. Here's the technique. Get a spiral notebook that you keep with you at all the time. क्या बात है, मेरे पास स्पाइरल नोटबुक थी यार, यहाँ पे कहाँ गई. ओके ठीक है, दिस इज माई स्पाइरल नोटबुक. इसमें जो लिखा था वो नहीं दिखाऊंगा. हाँ, each day open up your notebook and write down a list of your 10 to 15 most important goals without referring to your previous list. Do this every day, day after day. As you do this, several remarkable things will happen. The first day you write down your list of goals, you will have to give it some thought and reflection. Most people have never made a list of their own, then top goals in their lives, entire lives. अब क्या होता है, most of the people have never made a list of the 10 top goals. तो आज तक मतलब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अभी तक लिखा ही नहीं है अपने गोल्स के बारे में. The second day you write out your list without reference to your previous list. It will be easier. However, your 10 to 15 goals will change, both in description and order of priority. Sometimes a goal that you wrote one day will not appear the next day. It may even be forgotten and never appear again, or it may reappear later at one more appropriate time. Each day that you write down your list of 10 to 15 goals, your definitions will become clearer and sharper. You will eventually find yourself writing down the same words each every day. Your order of priority will also change of your life changes around you. But after about 30 days, you will find yourself writing and rewriting the same goals every day. Your life takes off. At about this time, something remarkable will happen in your life. It will take off. You will feel like a passenger, like a jet hurtling down the runway. Your work and personal life will begin to improve dramatically. Your people mind will sparkle with the ideas inside. So my beautiful friends, stay tuned with Pahadi Brothers. Don't go anywhere. पहाड़ी ब्रदर्स कह रहा हूँ, सॉरी, अमन रावत. चीज़ें याद नहीं. पोटेंशियल कॉर्पोरेशन का IPO में इग्नोर कर रहा हूँ. गुड. 4% का रिटर्न है, इग्नोर करो, कोई नहीं. अभी बहुत लॉस में चल रहा है भाई, 2% निफ्टी गिर गया. बाकी कंपनियों से कैसे उम्मीद कर रहे हो? जितने भी जो बेच के ये कर रहे हैं ना, वो अब इनको ही मैनिपुलेट करेंगे जो नए आ रहे हैं. तो इनमें अभी मत डालो, मैं तो कह रहा हूँ. अभी मार्केट से थोड़ा सा दूर रहो, थोड़ा एनालाइज करो किस पे डालना चाहिए, है ना. मतलब थोड़ा सांस लो, क्योंकि IPO एक ऐसी चीज़ है जो आ गया और वो गलती से लॉस पे चला गया. मुझे ये गलती का पता चल गया है. अगर वो लॉस पे चला गया तो दिक्कत हो जाएगी. और स्टार्टिंग में आपको पता ही है कितना मैनिपुलेट होता है. स्टार्टिंग के 2-3 दिन में लोग खरीदते हैं, लोग बेचते हैं, लोग खरीदते हैं, कभी प्राइस हाई जाता है, कभी एकदम नीचे आ जाता है. मतलब 100 रुपये का डिफरेंस देखने को मिल जाएगा आपको. प्रॉफिट भी हो सकता है, तुरंत निकाल भी सकते हो. करो सबका इग्नोर करो. वेन्यू पाइप्स अच्छा है. तो चलो गाइस, टाइम हो चुका है, 1 घंटा एग्जैक्ट हो चुका है. बाय बाय, टेक केयर. थैंक्स फॉर जॉइनिंग द लाइव स्ट्रीम with Aman Rawat, and you are watching Brain Tracy Goals.
हाउ टू गेट एवरीथिंग यू वांट फास्टर देन यू एवर थॉट पॉसिबल। एंड इस बुक का एक ही कहना है कि सेट योर गोल्स, गोल्स बनाओ, उनको बांटो छोटे छोटे हिस्सों में और उसके पीछे काम करो और थको मत, रुको मत। अगर कोई फालतू का काम कर रहे हो उसको सिस्टमेटिक वे से करो। ABCD टास्क बना लो, कौन सा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो ख़त्म करके ही B टास्क करना है, B ख़त्म करके ही C करना है, C ख़त्म करके ही D करना है। ओके, तो ये बस बुक के ओवरव्यू है। अभी कुछ 50-60 पन्ने बचे हैं। आई होप कि हम इस बुक को कल ख़त्म कर दें। आई डोंट नो वाई मुझे इतनी जल्दी हो रही है इस बुक को ख़त्म करने की, क्योंकि मुझे नेक्स्ट बुक स्टार्ट करनी है जो कि बहुत ही अच्छी है, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। और उसके लिए मुझे कल में 50-60 पेज पढ़ने पड़ेंगे। तो देखते हैं, एक बार दिन में आने की कोशिश करूँगा अगर मैं फ्री हो जाता हूँ तो, है ना। तो बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, एंजॉय द लाइव स्ट्रीम विद अमन रावत ऑन पहाड़ी बिजनेस लाइव स्ट्रीम। मैंने भी 2 शेयर खरीदे आज। किसके? टाटा स्टील के 2 शेयर खरीदे। लो अगर मेरी मानो तो। नहीं, टाटा स्टील तो अच्छी कंपनी है यार, उसके ले लो। कितना गिर गया? 700 कितने हुए? 700 से नीचे गिरे या नहीं गिरे? किसी कंपनी के साथ मर्ज होने वाला है। ओके ओके, वो बताओ कितने क्या बोलते, क्या शेयर चल रहा है प्राइस? नहीं, टाटा स्टील तो अच्छा है, अभी बाय कर लो, फ़ायदे में रहोगे। आगे रिटर्न देंगे भाई, ये बहुत अच्छे अच्छे। कर लो बाय। पर अभी वो मार्केट देखते भी रहना, क्योंकि हमारी जो साइकोलॉजी होती है ना कि एकदम से आता है, हमने 300 मतलब 750 रुपये में लिया और वो एकदम से 700 पे आता है ना, तो घबराहट सी होती है। न्यू है ना हम लोग, इसलिए। चलो फिर। अरे भाई 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 1100 गए, अरे ये तो बढ़ावा ही है अब भी। हेलो जिमी, आप तब आए जब हम जा रहे हैं, कौन सी दुनिया में जी रहे हो? मैंने नहीं देखा यार, मैं तो बस कैंपस को ही देखता जा रहा हूँ। चलो बाय बाय, टेक केयर। सब लोग कुछ ज़्यादा ही लेट आए हैं। थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग द लाइव स्ट्रीम। मज़ा आया आज का सेशन। अगर जिसने नहीं देखा है वो दोबारा देख सकता है, कुछ अच्छी बातें हैं, सीखने को मिल जाएंगी। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।